السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منظور جنجوعہ، اپنا پروگرام شانزِ لیزی لے کے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہماری مہمان ہیں انڈس ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے والی آرگنائزر نبیلہ عروج ہماری مہمان ہیں۔ ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 13 ستمبر کو اس مرتبہ پھر یہ دوسرا پروگرام یہ آرگنائز کر رہی ہیں، یہاں پہ فنڈ ریزنگ ہوگی ذائقہ ریسٹورنٹ میں، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کب سے آپ اس سے اٹیچ ہیں انڈس ہاسپٹل سے، اور فلاحی کام کا آپ کو کس طرح سے خیال آیا؟ یہ تو ایک مشکل فیلڈ ہے اور آپ کوئی جاب بھی کرتی ہیں میرے خیال میں۔ جی 2 سال ہو گئے ہیں، میں جی 2 سال سے ان کے ساتھ ہوں، انڈس ایسوسی ایشن کے ساتھ، ٹھیک اور یہ میرا دوسرا پروگرام ہے۔ ٹھیک اور جی یہ ڈپینڈ کرتا ہے، پہلے تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، صحیح پر 2 سال پہلے مجھ سے رابطہ کیا حافظ احمد نے، جی وہ اسپین میں ہوتے ہیں اور ورک کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی، انڈس ایسوسی ایشن کے ساتھ۔ ٹھیک تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کی پروفائل دیکھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ انڈس کے لیے کام کریں صحیح فرانس سے، تو میں نے پھر شروع کر دیا آپ نے۔ شروع کر اچھا، تو دیا یہ تھا۔ انڈس ہاسپٹل کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کتنے پروجیکٹس ہیں پاکستان میں چل رہے ہیں؟ جی ضرور، انڈس ایسوسی ایشن اور نیٹ ورک جو ہے، ہیلتھ نیٹ ورک ہے، وہ پاکستان سے ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ آپ کے مفت علاج ہوتا ہے، ٹوٹلی فری ہے سہولتیں جی ہاں۔ ٹوٹلی فری۔ اور سب سے پہلا جو ہاسپٹل ہے جو کراچی میں، جس کی بنا تھا۔ بنیاد رکھی 2007 میں ڈاکٹر باری نے، اور وہ ایک ہاسپٹل ہے، سٹارٹ تو 300 بیڈ سے ہوا بیڈ سے ہوا، تھا۔ اور پھر اب ماشاءاللہ سے وہ 1013 تک پہنچ اچھا، چکے ہیں۔ زبردست۔ اور یہ ایسی نوعیت کا ہاسپٹل، واحد نوعیت کا ہاسپٹل ہے جہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے۔ جی ہاں، نہ اکاؤنٹنٹ ہے نہ کیش جی، کاؤنٹر، میرا اور لاہور میں جانا جی، ہوا جی اس پہ۔ اور یعنی کہ آپ کو کسی پرچی کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور تو اس میں لاہور میں جو ہاسپٹل ہے اس کے کتنے بیڈ ہیں؟ وہ ابھی کب سے بنا ہے؟ وہ ابھی 3 سال ہوئے ہیں جی تقریباً، اور وہ ابھی جی جی اس پہ ہے، پروسیجر میں ہے، وہ آگے اس کو ٹھیک لے کے آ رہے جی ہیں جی، جی۔ تو کون کون سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور زیادہ تر مریض کن بیماریوں کے ساتھ کون سا طبقے کے غریب لوگ سارے آتے ہیں، کون سے آتے نہیں، ہیں؟ ادھر سب سے زیادہ یہ ہے کہ ادھر آپ کی وہ مالی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، بیک صحیح گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا، صحیح اور ہر طرح کے مریض جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی کیئر ہوتی ہے، ان کو سہولتیں ملتی ہیں، فراہم ہوتی ہیں، اور فری آف جی کچھ جی نہیں۔ اور اگر آپ ڈونیشن دینا چاہیں وہ علیحدہ بات جی ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی فی، کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے۔ جی اور ویسے بھی انڈس ایسوسی ایشن جو ہے اور نیٹ ورک ہے، انڈس نیٹ ورک، وہ ان کی اور برانچز بھی ہیں جو جی اب کام کر رہی ہیں، جی اور 110 پرائمری ہیلتھ یونٹ۔ ہیلتھ یونٹ ہیں، موبائل یونٹ بھی ہیں، اچھا اچھا، اور زبردست۔ کیا بورڈ یونٹس بھی ہیں، اچھا اچھا اچھا، زبردست۔ کلینکس، اور جو 4 رجسٹرڈ بلڈ، جو بلڈ بینکس ہیں جن کو جی کہہ، جی جی وہ بھی ہیں، ٹھیک کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اور کوئٹہ میں بھی وہ سروس دیتے ہیں، ٹھیک اور باقی آل راؤنڈ پاکستان کے مختلف اضلاع میں بھی یہ اپنی خدمات سر صحیح۔ انجام دیتے میں نے دیکھا کہ لاہور میں جو ایون اسٹوڈنٹس ہیں، قریب جی قریب جو جی جی یونیورسٹیز ہیں، وہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو تو ادھر ہی ریفر جی کرتے ہیں۔ جی میری جی اپنی بیٹی بلکہ وہاں پہ ریفر ہو کر کے ہی اس جی کو جی ایک جی تھوڑا سا ایشو ہوا، تو مجھے پھر وزٹ کرنے کا موقع ملا، تو بہت اچھا، مجھے تو بہت پسند آیا۔ جی۔ اور اب یہ ہے کہ کینسر کے بھی علاج سٹارٹ ہو گیا ٹریٹمنٹ ہے شروع کیا تھا، ایک سال زبردست۔ سے، لیکن وہ سب کینسر پیشنٹس کا نہیں ہے، جی صرف بچے جو ہیں اچھا، بچوں کے کینسر جو جی پیشنٹ ہیں بچے، وہ ان کے ہے، لیے ان کے گڈ۔ لیے، اور ٹرانسفر جو ہوتے ہیں کہ بلڈ پرابلمس ہیں جن جی جی کو، یا ٹھیک ایسے وہ سارا کچھ۔ ٹھیک اور ساتھ یہ ہے کہ کافی زیادہ دوسرے اضلاع سے بھی لوگ آتے ہیں، ڈسٹرکٹ سے، لاہور جی ہاں جی جی، اور پورا پنجاب ہی تقریباً جی لاہور جی آتا جی، ہے جی اس کے اور لیے۔ کراچی بھی ٹھیک ماشاءاللہ سے صحیح۔ جی۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں کا سالانہ مفت علاج ہوتا ہے 60 لاکھ سے انڈسٹری؟ اوپر 60 لاکھ لوگ، جی ٹھیک ہو گیا۔ جی۔ تو
किस तरह से इसकी फंडिंग ये सारी इकट्ठी होती है? सबसे ज़्यादा तो ये है कि फंडिंग के लिए पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा फंड्स आते हैं, फंड्स लोग आते लोग हैं, देते हैं। जी, जो डोनर हैं हमारे उधर हॉस्पिटल के लिए, दोनों हॉस्पिटल्स के लिए, वो इतने फंड्स डोनेशन पाकिस्तान से ही हो जाते हैं कि अब जब हम यूरोप में फंड रेजिंग का प्रोग्राम करते हैं, जी, जी, पूरे यूरोप में, अब जी। काफ़ी ज़्यादा यूरोप के काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में हुँ, रजिस्टर है हुँ। जी, जी, यकीनन इंडस हॉस्पिटल, जी। जी। और सालाना जब चैरिटी के लिए प्रोग्राम्स होते हैं फंड रेजिंग के लिए, तो जो यहाँ से हम फंड रेज करते हैं, वो पाकिस्तान नहीं जाता, वो अच्छा, यहीं रहता है। जी। कि अगर हमें पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल को कुछ भी कोई न्यू मशीनरी चाहिए, कोई मशीनरी नई हाँ जी, चाहिए, कोई इक्विपमेंट के लिए आप इधर ही जी, जी, रखते हैं। जी, ठीक, फिर गुड। हम वहाँ से अच्छा, अच्छा। यहाँ से कर सही। लेते हैं। अच्छा तो आप ये जो 13 सितंबर को ज़ायका रेस्टोरेंट में हो रहा है जी, प्रोग्राम, जी। इस हवाले से कुछ बताइए, कौन मेहमान हैं? कि जी 13 सितंबर को हो रहा है और शाम 6 बजे, हुँ, और ये है कि नुमान एजाज आ रहे हैं, जी, डॉक्टर बारी और उनकी टीम इंडस आएगी। की जी, तो पूरी क्या टीम उसकी होगी। टिकट वगैरह क्या जी, टेबल जी। का क्या उसका रेट वगैरह रखा है? फर्स्ट टाइम हमने रिजर्वेशन पे था, पर जी, वो टिकट्स नहीं वगैरह दी। नहीं थी। जी, लेकिन इस साल टिकट के साथ है, 25 यूरो पर पर्सन है, जी, और अगर आप 10 पर्सन की टिकट लेते हैं रिजर्वेशन करवाते हैं तो वो 200 आ जाएँगे, 225। मतलब वो कम हो जाएगी, जी। ठीक हो गया। तो आपकी जो आप अकेली हैं, आपकी तंज़ीम है, आपके कौन-कौन साथ आपके काम करता है यहाँ जी पे? जैसे कि मैं हूँ, मेरे साथ एक मोहम्मद जवाद हैं हमारी जी, टीम में, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर हैं, सही, हमारे साथ एक और हमारे अभी हालिया में हमें जॉइन किया है, वो हैं मुनीब ठीक, रिजवान, सही। वो हैं, और हम इंशाल्लाह ताला अपनी टीम को इम्प्रूव जी, जी, करने इम्प्रूव की कर रहे कोशिश हैं। करेंगे। ठीक जी। है। तो यहाँ पे आपने को मुस्तकिल फंड रेज़र भी फंड डोनर्स भी हैं यहाँ पे? जी, वो ये है कि अभी ये हमारा दूसरा चैरिटी प्रोग्राम है। अब पहले तो सिर्फ़ इंडस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए डॉक्टर बारी और टीम आए आती थे। रही जी, है, जी, जी, 2-3 दफ़ा, जी, जी, और ये बाकायदा हमारा दूसरा डोनेशन प्रोग्राम। के लिए है। हुँ, तो हम लोग ये है कि इधर की हमारी जो फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो जी, जी। बाकायदा पिछले साल से वो डोनेशन के लिए। डोनेशन जी। हर साल तकरीबन जी, देते हैं। जी। अच्छा तो ये फलाही काम का आपने ये बेड़ा उठाया, ये मुश्किल काम नहीं है, लोगों से पैसे माँगना तो बहुत मुश्किल काम होता है। या ये एक निहायत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, सही। और आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे आ जाती है कि आप कितने लोगों को इकट्ठा करते हैं डोनेशन के लिए जी, और जी, अवेयरनेस के लिए। सही। और ये एक नेटवर्क ऐसा है जिसमें हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन जो यहाँ पे अब जैसे कि काफ़ी ज़्यादा देखें तो शोबा हयात में हमारे पाकिस्तानी हर शोबे में चले बच्चे गए हैं। जा हाँ, रहे हैं, जी, हाँ, जी। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे लेकिन प्रोफ़ेशन्स हमारे में हमारे ज़्यादातर तवक्कुआत उन लोगों से हैं जो मेडिकल में हैं। जी, जी, तो हम उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, सही, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं ठीक, इसी प्लेटफ़ॉर्म से कि वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहें, सही। और अगर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स, जैसे डॉक्टर उज़ैर हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पाकिस्तान गए हैं, जी, उन्होंने विज़िट किया है, वो अपने विज़िटर लेके जाते हैं, सही। हॉस्पिटल्स का विज़िट होता है, फिर वो वैसे भी दुबई से, यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज़ से डॉक्टर जाते हैं सही। और विज़िट करते हैं। अभी इस प्रोग्राम की एडवर्टाइज़मेंट के लिए आपने क्या अब तक क्या किया है लोगों हमारा फ्लायर है, जी, ये एक जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर हम रेज़ एसोसिएट से लोगों को भेज रहे हैं, सही, और मीडिया को हमने इनविटेशन मैंने जी। खुद यानी वो कि डायरेक्ट कॉल भी करके लोगों से जाके मिलते हैं जो लोग अ, बिज़नेसमैन हैं या जी, टिकट जी। खरीद सकते हैं। वो टिकट खरीद सकते हैं, और मीडिया से हमने बात की है, उनको जी, इनविटेशन भेजा है ठीक। और इनवाइट किया है कॉल पे भी और जी, वैसे जी, भी। सही। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा यही है कि हम दूसरी कम्युनिटी जो बिज़नेस कम्युनिटी है और दूसरे, उनसे हम जी, जी, मिलें और ठीक है। उनसे बात करें। अच्छा आखिर में आप क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है इवन सियासी समाजी तंजीमें हैं उनको आप कोई पैगाम देना चाहें कि इस प्रोग्राम के हवाले से आप पार्टिसिपेट करने के हवाले से? जी हमारा पैगाम बिल्कुल बहुत सादा-सा है कि इंसानियत के लिए एक
हम एक एफर्ट कर रहे हैं जी, इंसानियत के लिए जी। और हम ओवरसीज़ हैं, हम अपने पाकिस्तानी जो बहन-भाई हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो इलाज नहीं करवा मजबूर सकते, हैं, जी हाँ। मजबूर हैं, उनके लिए हम ये फ्लाई काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें हैसियत वो अहमियत नहीं रखती है हाँ, कोई कि वो आपकी 5 यूरो देता है या 10 देता है और या 50 देता है, जी। पाकिस्तान में भी अगर आपकी हैसियत इसमें रुकावट नहीं बनती कि इलाज में जी, आप जी, किसी ठीक। भी शोबाए हाथ से हैं, किसी भी क्लास से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। तो अगर हम किसी के लिए एक मेडिसिन के लिए, एक किसी कैंसर पेशेंट के लिए, ज़िंदगी के लिए हम एफ़र्ट कर सकते हैं, अतिया दे सकते हैं, तो प्लीज़ आइए और हमें जॉइन करिए और जितनी आपकी इस्ताअत है, जितना आप दे सकते हैं, 5 यूरो, सेंट ना पहुँचे कैल कोई लिमिट नहीं है। सही। आप ज़रूर आएँ और अपने बच्चों को लेके आएँ, अपने फैमिली को लेके आएँ ताकि अवेयरनेस पैदा हो कि हम लोग यहाँ पे अगर इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं फंड रेज़िंग के लिए, तो हमारे बच्चों को आगे पता हो कि हमने भी आगे चल के इसको कंटिन्यू करना है अपने मुल्क जी, के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी आपके थैंक आने यू। का, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी। ये थी जी नबीला आरज़ू, ऑर्गेनाइज़र इंडस हॉस्पिटल के लिए फंड रेज़िंग करती हैं। हमेशा की तरह इस साल भी 13 सितंबर को प्रोग्राम हो रहा है। बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, इंसानियत के लिए, फलाह के लिए, गरीबों के लिए अपना हिस्सा डालिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।